ایران سے مذاکرات انتہائی منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ نمائندوں کو ہدایت کر دی معاہدے کے لیے جلدی نہ کریں کیونکہ وقت ہمارے ساتھ ہے۔ دونوں فریقوں کو پورا وقت لے کر درست فیصلہ کرنا ہوگا، کسی غلطی کی گنجائش نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ لکھا، ایران سے اب ہمارے تعلقات کہیں زیادہ پیشہ ورانہ اور تعمیری ہو رہے ہیں۔ حتمی معاہدے تصدیق اور دستخط ہونے تک پابندیاں اور محاصرہ پوری قوت سے برقرار رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے تعاون اور حمایت پر مشرق وسطی کے ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ لکھا، خلیجی ملکوں کا باہمی تعاون تاریخی ابراہیم اکارڈز میں شمولیت سے مزید مضبوط ہوگا۔ کسے معلوم شاید ایران بھی ابراہیم اکارڈز کا حصہ بننا پسند کرے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایرانی بحریہ کی تباہی کی تصویر شیئر کی تھی اور لکھا تھا، الوداع AI تصویر میں امریکی ڈرون سے ایرانی جہازوں کو تباہ ہوتے دکھایا گیا تھا۔ جوہری ہتھیار حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، دنیا کو یہ یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہیں، ہم جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں۔ تسنیم نیوز کے مطابق ایرانی صدر نے کہا، امریکہ سے کوئی بھی معاہدہ رہبر معظم مجتبی خامنہئی کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ ملک کا کوئی فیصلہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے دائرہ کار سے باہر اور رہبر معظم کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا، پاکستان بہت جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا۔ پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ امن عمل میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی۔ امن عمل میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ آج ممکن ہے دنیا کو اچھی خبر ملے، صدر ٹرمپ مزید اہم تفصیلات کا اعلان کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کی نئی دلی میں نیوز کانفرنس، کہا ایران سے معاملات میں گزشتہ 48 گھنٹے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے دعویٰ کیا، ممکنہ معاہدے میں ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آبنۂ ہرمز بغیر کسی ٹول کے مکمل کھول دیا جائے گا۔ جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع کی جائے گی۔ اس دوران امریکی افواج خطے میں موجود رہیں گی۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ پابندیوں میں نرمی بھی متوقع۔ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا ذکر بھی مسودے میں شامل ہے۔ پاکستان نے بطور ثالث بنیادی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ثالثی کوششوں کی قیادت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کر رہے ہیں۔ ایرانی فوج نے صوبہ ہرمزستان میں اسرائیلی جاسوس ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے IRIB نے بتایا، اسرائیلی ڈرون ساحلی علاقے کے قریب پرواز کر رہا تھا، جسے فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے خبردار کر دیا، کسی بھی نئے حملے کا ہولناک جواب دیا جائے گا۔ حملہ آوروں کو شکست دے کر دنیا میں ایران کو بڑی طاقت بنا دیا۔ خطے میں بیرونی طاقتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان نے پیس میکر کا جو کردار نبھایا وہ چین کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی علی بابا کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز میں گفتگو، کہا چینی صدر شی جن پنگ کا خطے میں امن کے لیے 4 نکاتی ایجنڈا قابل تحسین ہے، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ مشترکہ کوششوں سے نہ صرف خطے میں امن کا قیام یقینی بنایا جا سکے گا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے نئے دروازے بھی کھلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہانگجو کا دورہ مکمل کر کے بیجنگ پہنچ گئے، چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان جلد خطے کی ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ پاکستان کو قرض نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ صدر شی جن پنگ نے چین کو عالمی معاشی اور عسکری طاقت بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب، کہا 30% MOUs اربوں ڈالرز کے معاہدوں میں بدل گئے ہیں۔ پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستانی اور چینی کمپنیوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے معاہدوں، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی علی بابا ہیڈ کوارٹرز میں گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین جوزف سائز سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے علی بابا کے جدید ترین نیٹ ورک اور عالمی سطح پر کامیابیوں کو سراہا۔ پاکستانی نوجوانوں کے لیے انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل سکل کی ترقی پر زور دیا۔ اس موقع پر پاکستان میں
डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑनलाइन अदायगियों का निजाम महफूज और तेज बनाने के लिए तकनीकी ताउन बढ़ाने पर बात की। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, एफसी के 3 जवानों समेत 14 अफराद शहीद, जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल। शटल ट्रेन पर होने वाले बम धमाके से मलहका इलाकों में तबाही, मोहल्ला फकीराबाद में 2 रिहायशी प्लॉटों समेत दर्जनों घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। बाज मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं, पल भर में सब कुछ उजड़ गया। मलबे तले दबकर 2 अफराद जान से गए। वजीर आला बलोचिस्तान ने ट्रॉमा सेंटर में जख्मियों की अयादत की। सदर और वजीर आजम की दहशतगर्दी की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को माफ नहीं करेंगे। शहदा के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वजीर आजम ने कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारा आज़म कमजोर नहीं कर सकती। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत कोयटा में खुसूसी इजलास। आईजी बलोचिस्तान ने चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहा, दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहरा किया। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सरफराज बुगटी का कहना था, शहदा के खून के मकरूज हैं, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर रेलवे की चमन फाटक के करीब धमाके की मजम्मत, इंतजामिया से फौरी रिपोर्ट तलब। हनीफ अब्बासी का कहना है, कोयटा कैंट से आने वाली शटल ट्रेन धमाके की जद में आई। भारत और अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रही हैं। दहशतगर्द नेटवर्क्स के नापाक अजाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, उन्हें इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बलूचिस्तान में फिर मासूमों का लहू बहा दिया गया। दहशतगर्दों ने माओं की गोदें उजाड़ी, बच्चों के सरों से बाप का साया उठ गया। बच्चों के ख्वाब हमेशा के लिए दफन हो गए। आखिर इन निहत्ते लोगों का कसूर क्या था? क्या बच्चों को मारना, खानदान उजाड़ना, मासूम जाने लेना दहशतगर्दों की नाम निहाद आजादी है? ये जंग नहीं, सिर्फ बुज़दिली, दरिंदगी और इंसानियत का कत्ल है। कलदम BLA के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई का वक्त आ गया। वक्त आ गया है कि इंसानियत के दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाए। बरतानिया, चीन, रूस, ईरान की कोयटा में दहशतगर्दी की मजम्मत। चीनी सिफारत खाने ने बयान में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं। रूसी सिफारत खाने का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरियट ने कहा, बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं। हमारी हमदर्दियां शोहदा और मुतासरा खानदानों के साथ हैं। ईरानी सफ़ी रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात काबिल मजम्मत हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। बन्नू के इलाके मिरियान में पाक फौज, CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 16 खारिजी मारे गए, 2 पुलिस एहलकार शहीद। हलाक खारजियों में 2 अहम तरीन सरगना भी शामिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान खारजी सरगना अब्दुल्ला सईद को भी जहन्नम वासिल किया गया। फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं। DI खान की तहसील कराची के गांव अटल शरीफ में दहशतगर्दों का हमला। अमन कमेटी के 3 अरकान समेत 4 अफराद जाँ बहक। दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। जाँ बहक अफराद में शाहजेब, दानिश, रसूली और एक नामालूम शख्स शामिल। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक रुकन और मरने वालों का असलहा साथ ले गए। पुलिस ने नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वाइस चांसलर गवादर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साबिर 3 साथियों समेत बाजियाब। खानदानी जराये ने तस्दीक कर दी। बताया, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, 2 प्रोफेसर्स और ड्राइवर बाजियाब हो चुके। बाजियाब अफराद ताहाल अपने घरों को नहीं पहुंचे। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साबिर और दीगर साथियों को 13 मई को मसरूम से अगवा किया गया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की होंगचू में मुख्तलिफ अहम चीनी कंपनियों के ओहदेदारान से मुलाकात। काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में ताउन, पाकिस्तान में उभरती काबिल तजदीद तवानाई के मार्केट और बढ़ती तलब और शमसी तवानाई के फरोग के लिए हुकूमत की पॉलिसी इकदाम पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने जदीद बैटरी टेक्नोलॉजी, तवानाई ज़खीरा के निज़ाम और शमसी तवानाई ताउन पर बातचीत की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स पर ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिवजंग में फार्मास्यूटिकल के सदर जेन जॉन ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान के तरक्की करते तिबी शोबे में सरमायाकारी ज़ेर बहस आई। पाकिस्तान में नई फैक्ट्रियों के क़याम, मौजूदा फैक्ट्रियों प्लांट्स की तौसील पर गुफ्तगू हुई। वजीर आला सिंह मुराद अली शाह का BRT रेड लाइन लॉट 1 का दौरा। एयरपोर्ट सिग्नल मरीर हॉल्ट से मौसमियात से पूरा तक काम का जायजा लिया। काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। कहा मंसूबे की तकमील से शहरियों को जदीद, तेज और महफूज सफरी सहूलत मुयसर आएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन ने वजीर आला सिंध को लॉट 2 की पेशरफ से आगाह किया। वजीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो का दौरा। शाह फैसल टोल प्लाजा पर इजलास। शाहराह भुट्टो पर राउंड द क्लॉक पुलिस पेट्रोलिंग यकीनी बनाने और हर इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत। मोटरसाइकिलों के शाहराह भुट्टो पर दाखिले पर सख्त पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को शाहराह भुट्टो पर ई चालान सिस्टम फौरी फाल करने की हिदायत। हुकूमत नौजवानों से टैक्स लेती है लेकिन तालीम नहीं देती। अवाम की जिम्मेदारी है कि वो दुरुस्त क़यादत का इंतखाब करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का योग में बदल दो निज़ाम जलसा-ए-आम से खिताब। कहा पूरा निज़ाम गल चुका है, इसको बदलने की जरूरत है। अब ताखीर का वक्त नहीं है, कल का फैसला आज करें। जमात इस्लामी अवाम को बुनियादी हुकूक जरूर फराहम करेगी। हुकूमत ने जुलाई से अप्रैल $11 अरब बैरूनी कर्जा लिया। रवा माली साल के दौरान दिया गया कर्ज गुज़श्ता साल की निस्बत 83% ज्यादा है। गुज़श्ता माली साल के इस अरसे के दौरान $6 अरब बैरूनी कर्जा लिया गया था। वजारत इक्तिसादी उमूर ने जुलाई से अप्रैल गैर मुल्की फंडिंग और कर्जों की रिपोर्ट जारी कर दी। नॉन प्रोजेक्ट फंडिंग $8 अरब 31 करोड़, प्रोजेक्ट फंडिंग $2 अरब 75 करोड़ 66 लाख रही। इस्लामाबाद में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर डाकुओं का गैर मुल्की शहरियों पर तशद्दुद। गैर मुल्की शहरियों को गेस्ट हाउस में घुसकर बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डाकू मोबाइल फोन, नकदी और लैपटॉप लूटकर सियाह रंग की गाड़ी में फरार हो गए। थाना कोहसार पुलिस ने डकैती और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में 1.5 करोड़ की चोरी करने वाले मुल्जिमान धर लिए गए। मुल्जिमान से 25 तोला सोना और गैर मुल्की करेंसी बरामद। पुलिस ने बताया घरेलू मुलाजमा ने अपनी वालिदा के साथ मिलकर चोरी की वारदात की। मुल्जिमा की वालिदा चोरी शुदा माल लेकर रनाला खुर्द फरार हो गई थी। पुलिस का कहना है घर के अफराद कुर्बानी के बकरे खरीदने मवेशी मंडी गए हुए थे। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। आजमीन हज मिना रवाना हो गए, जहां दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद हो रही है। आजमीन हज 8 जिलहज मिना में गुजारेंगे और 9 जिलहज को मैदान अरफात पहुंचेंगे और खुतबा हज सुनेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद आजमीन अरफात से मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पैगाम में कहा, आजमीन हज कवानीन और ज़ाबतों की मुकम्मल पाबंदी करें। आपका बेहतरीन अखलाक ही पाकिस्तान का असल चेहरा है। ईद से पहले आखिरी संडे मंडी डे बन गया। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी भरपूर अंदाज में जारी। लाहौर में कहना की मवेशी मंडी में रोनाल्डो बैल ने धूम मचा दी। 6 फुट ऊंचा ये बैल सिब्बी नस्ल का है, कीमत सिर्फ 20 लाख रुपए। कराची की मंडी में टेडी बकरों का बकरा स्टाइल खरीदारों को भाग गया। पेशावर की मवेशी मंडियों में लाए गए ऊंट खरीदारों की तवज्जो का मरकज। वजीराबाद में शेरा और हीरा नामी बकरों की जोड़ी की धूम। मालिक ने दोनों बकरे बड़े लाड प्यार से पाले। इस्लामाबाद के मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कुर्बानी के जानवरों को सजाने के सामान के स्टॉल्स भी लग गए।
बकर ईद की रौनकें उरूज पर, गली महल्लों में मेले का समा। कुर्बानी के जानवरों ने बच्चों और बड़ों सबको दीवाना बना दिया। कहीं बैल भागा तो कहीं बकरे ने दौड़े लगवा दी। लोडिंग और अनलोडिंग के वक्त दिलचस्प मनासिर, जानवर आगे आगे और मालिक पीछे पीछे। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म है। मौसमियात के मुताबिक कल हाई प्रेशर सिस्टम बनने के बायस सिंध के बेशतर अजला हीट वेव की लपेट में आ सकते हैं। दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री जायद रहने की पेशगोई। पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। कराची में गर्मी पड़ते ही बिजली के बाद पानी भी नायाब। शहरियों के लिए दोहरा अजाब। शहर का 70% इलाका कई रोज से पानी से महरूम। शहरी महंगे दामों टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। वाटर कॉरपोरेशन की नाहली की वजह से ईद से कबल पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, स्कीम 33, अजीजाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल एरिया में पानी की फराहमी मुअत्तल। शाह फैसल, लांढी, कोरंगी और जमशेद क्वार्टर समेत कई इलाके अभी तक पानी से महरूम। कोई पुरसाने हाल नहीं। हुक्मरान कब नोटिस लें, शहरियों की दुहाई। छठे सीजन में चौथा टाइटल। बार्सिलोना ने चौथी बार विमेन्स सुपर लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल में ओआई लियोनेस को एकतरफा मुकाबले में 4-0 से आउटक्लास किया। फैसला कुन मार्के में सलमा और बेजिस ने 2-2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लवली सॉन्ग की लाहौर में प्रेस मीट। प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। फिल्म के हीरो फरहान सईद ने कहा, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म शायकीन के मयार पर पूरा उतरेगी। अदाकारा अमनिया शाह ने कहा, अपना किरदार बखूबी निभाया है, उम्मीद है लोगों को जरूर पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था, फिल्म ईद की मुनासबत से बनाई गई है।